Okay, so in this video, we'll be studying about how to learn the various steps in the heme synthesis, as well as we'll be dealing with the related porphyria. Okay, and also I'll be discussing the important features of porphyria. तो पहले ट्रिक पे आते हैं, how to learn the steps of heme synthesis. फिर ट्रिक पे आएंगे how to learn the types of porphyria. So मैंने how to understand heme synthesis का वीडियो प्रीवियसली अपलोड किया है. सो गाइस प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन जस्ट लर्न दिस, सो इट वुड बी मच मच ईजियर. सो हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले जो प्रिकर्सर है सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन. सो पहले मैं यहाँ पर इस साइड मैंने ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिटन द वेरियस compounds which are involved in heme synthesis in order. तो वो हैं some great doctors palpate heart under cover produces pure heme. So some S stands for succinyl coenzyme A, G stands for glycine, doctors का D stands for the delta in delta ALA. So ये delta यहाँ है. Palpate stands for, P stands for porphobilinogen, H stands for hydroxymethyl bilane, U stands for uroporphyrinogen, C stands for coproporphyrinogen, P stands for protoporphyrinogen, P stands again for protoporphyrin this time, and H stands for heme. इसको लर्न करने का और भी अच्छा तरीका है कि आप इसे समझो, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो. बट कि क्योंकि पोरफायरिन्स को लर्न करने का मुझे कुछ समझने वाला तरीका नहीं लगा, इसलिए बेटर है कि जब हम इन्हें रिलेट करेंगे तो एक बार ये भी लर्न करें. ओके, सो फिर से डिस्कस करते हैं. सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन विल form ALA in the presence of enzyme ELA synthase, which is also the rate limiting step. हम already बता चुकी हूँ. Then two molecules of ELA will undergo dehydration to form the PBG, which is the first monopyrrole under the and the enzyme would be the ELA dehydratase, and this is the enzyme which is zinc containing, also is inhibited by lead. ये मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में. उसके बाद फिर पोर्फोबिलिनोजन जो कि मोनोपायरोल है वो लीनियर टेट्रापायरोल जो कि HMB है उसमें कन्वर्ट होगा, एंड द एंजाइम इज HMB सिंथेस और PBG डीएमिनेज क्योंकि अमोनिया निकलता है. Then this HMB, which is the linear tetrapyrrole, would be converted into cyclic tetrapyrrole, which is uroporphyrinogen. Enzyme involved is uroporphyrinogen synthase. Then uroporphyrinogen will undergo decarboxylation to form coproporphyrinogen. इसमें से जो एसिटेट ग्रुप है यूरोपोरफायरिनोजन दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल ग्रुप. दिस आल्सो हैव गिवन द स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन इन माय प्रीवियस वीडियो. Uroporphyrinogen decarboxylase is the enzyme. Then the coproporphyrinogen is converted to protoporphyrinogen by coproporphyrinogen oxidase. Yes, oxidase. Then protoporphyrinogen is converted into protoporphyrin by enzyme protoporphyrinogen oxidase. And finally iron add होगा and we'll get the heme. ठीक है. Now why in this video my main purpose is to link the enzymes with their deficiency and with related porphyria. अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ब्लू कलर से. यहाँ मैंने ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है ये लाइन कुछ सिग्निफाई कर रही है. इस लाइन के नीचे जो भी डेफिशिएंसी होगी उनसे क्या होंगे, पोरफायरिया होंगे, उनसे रिलेटेड पोरफायरिया होंगे. लेकिन इस लाइन से ऊपर जो भी डेफिशिएंसी है इनसे क्या होगा, पोरफायरिन्स तो अभी तक बने नहीं है तो पोरफायरिया हो नहीं सकता. लेकिन हीम नहीं बनेगा अगर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, एला सिंथेज या एला डिहाइड्रेटेज, तो उसकी वजह से अनीमिक कंडीशन होगी, अनीमिया होगा. तो ऊपर के दो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से अनीमिया होगा, बाकी नीचे की एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से पोरफायरिया होगा. तो अब हम वो डिस्कस करते हैं. पहले पोरफायरिया को एक बारी देखते हैं, नाम उनका मैंने ट्रिक क्या बनाई है, उसके बाद फिर समझेंगे डिटेल में. ठीक है. सो पहले पोरफायरिया की ट्रिक देखते हैं. सो ट्रिक इज अ करप्ट पॉलिटिशियन hides very easily. A stands for acute intermittent type of porphyria जो कि HMB synthase की deficiency की वजह से. C stands for incorrupt for the congenital erythropoietic porphyria. Here congenital erythropoietic porphyria. P in politician stands for porphyria cutanea tarda. H stands for hereditary coproporphyria. V stands for variegate porphyria and E stands for erythropoietic porphyria. ठीक है.
अब एक एक करके इन डेफिशिएंसीज इन पोर्फायरियास को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है एक्स लिंक्ड पोर्फायरिया. तो मैंने बताया कि ब्लू लाइन से ऊपर वाले जो हैं वो अनीमिक कंडीशंस शो करेंगे. एला सिंथेस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एक्स लिंक्ड प्रोटोपोर्फायरिया. यहाँ पोर्फायरिया तो लिखा है बट दिस इज अनीमिया. ओके, सो ये नोट करना, दिस इज नथिंग बट अनीमिया. एक्स लिंक्ड प्रोटोपोर्फायरिया लिखा है लेकिन है क्या ये चीज, अनीमिया ही है. Yes. तो ये क्या, अनीमिया ही है. देन एला डिहाइड्रेटेज, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ. एला डिहाइड्रेटेज और फिरोचिलेटेज, दीज आर द टू एंजाइम्स जो कि लेड पॉइजनिंग की वजह से हार्म होते हैं. लेड में कौन कौन से इन्वॉल्व है, एला डिहाइड्रेटेज, दिस वन, एंड फेरोचिलेटेज. तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो लेड से क्या होगा, एला डिहाइड्रेटेज काम नहीं करेगा. अब एला डिहाइड्रेटेज काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से जो एला है वो बढ़ेगा. अब एला कैसे बढ़ेगा, जल्दी से समझते हैं. एला डिहाइड्रेज काम नहीं कर रहा तो हीम नहीं बन रहा. हीम नहीं बन रहा तो हीम किसका इनहिबिटर था, एला सिंथेस का. हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. हीम नहीं है तो ये इनहिबिट नहीं करेगा एला सिंथेस की जीन को, तो एला सिंथेस ज्यादा काम करेगा. एला सिंथेस ज्यादा काम करेगा तो एला ज्यादा बनेगा. तो इसका मतलब कि लेड डेफिशिएंसी में एला डिहाइड्रेटेज कम काम कर रहा है लेकिन एला सिंथेस ज्यादा काम कर रहा है, और इसकी वजह से एला की प्रोडक्शन बढ़ रही है. और क्योंकि एला एक्यूमुलेट हो रहा है इसकी वजह से प्लम्बो पोर्फायरिया या डॉस पोर्फायरिया हो रहा है. अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ अनीमिया ही है, ठीक है. प्लम्बो पोर्फायरिया या डॉस पोर्फायरिया, और इसमें प्योरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. I'll clear this slide again after discussing everything, and एक स्लाइड पे मैं क्लीनली सब फीचर्स लिख दूंगी. बट अभी समझना है कि प्लम्बो पोर्फायरिया में क्या है, क्यों ये लेड टॉक्सिसिटी की वजह से एला जो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्रेन में प्योरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देगा. उसके बाद अब हमारे HMB सिंथेस पे, जिसकी डेफिशिएंसी से एक्यूट इंटरमिटेंट टाइप ऑफ पोर्फायरिया हो रहा है. अगेन मेजर सिम्टम्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, लेकिन कुछ एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है. व्हेन इज congenital erythropoietic porphyria, this is also called as Gunther's disease. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम मेकिंग सम स्पेस here. So I am writing that congenital erythropoietic porphyria, इसे और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं गुंथर्स डिजीज. जैसे हमने प्लम्बो पोर्फायरिया को डॉस पोर्फायरिया भी कहा है वैसे, ठीक है. उसके बाद यूरोपोर्फायरिनोजेन, लेट मी हाईलाइट इट ऑल्सो. यूरोपोर्फायरिनोजेन सिंथेस की डेफिशिएंसी से हो रहा है पोर्फायरिया क्यूटेनिया टाडा. This is really important because Porphyria cutánea tarda is most common type of porphyria. I'm again repeating my clean slide पे सब important features अभी लिख दूंगी, सिर्फ समझते हैं. Porphyria cutánea tarda is most common type of porphyria. Then another next is hereditary coproporphyria, which is due to coproporphyrinogen oxidase की वजह से. हेरिडिटरी कॉप्रोपोर्फायरिया. उसके बाद प्रोटोपोर्फायरिनोजेन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से वेरिगेट पोर्फायरिया, और फाइनली फेरोचिलेटेज की वजह से एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्लीन करके सारी फीचर्स क्लीनली लिखती हूँ नीटली एक जगह पे. एंड ऑल्सो बस एक चीज समझनी है कि जितने भी पोर्फायरिया हैं, पोर्फायरिया या तो एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड होगा लोकेशन, या वो लिवर से रिलेटेड होगा, हिपैटिक. तो जिनके नाम में एरिथ्रोसाइटिक आ रहा है वो एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है, बाकी बच्चे सारे हिपैटिक है. दो ही जगह आ रहा है एरिथ्रोसाइट, एक कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोसाइटिक पोर्फायरिया में, अगेन माय कर्सर इज लॉस्ट, यस, एक यहाँ पर आ रहा है एरिथ्रोसाइटिक और एक आ रहा है लास्ट में एरिथ्रोसाइटिक, बाकी सारे हिपैटिक है. मैं क्लियर करके एक बार फिर से नीटली लिख देती हूँ. So yeah, now I have all mentioned everything in the single slide. अब इसे डिस्कस करते हैं. देन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. तो या
So I have written here, I have made 3 columns mentioning enzyme, porphyria and mnemonic. So mnemonic वही है, a corrupt politician hides very easily. Enzyme HMB synthase की वजह से A से जो है वो acute intermittent porphyria है. Porphyrinogen synthase, uroporphyrinogen synthase की वजह से C से congenital erythropoietic porphyria, also called as Gunther's disease. यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज की वजह से पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा. कॉप्रोपारफायरिनोजन की वजह से ऑक्सीडेज की वजह से हेरिडिटरी कॉप्रोपोरफायरिया. पोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से वी से वेरीगेट पोरफायरिया. एंड फाइनली फेरोचिलेटेज की वजह से easily का E एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया. ऑल्सो रिमेंबर फेरोचिलेटेज इज द एंजाइम जिसे लेड इनहिबिट करता है, बार बार बोल रही हूँ. ओके, नाउ there are some questions come. So most common acute porphyria is acute intermittent. Most common acute is acute intermittent. Most common type of porphyria, porphyria cutanea tada. Most common porphyria in children is erythropoietic porphyria. And lastly, the AIP, which is acute intermittent porphyria, shows purely neurological symptoms. Then the congenital erythropoietic and porphyria cutanea tada together, both of them, they are purely cutaneous. And hereditary coproporphyria and variegate porphyria, these are showing both neurological as well as cutaneous symptoms. So you can take the screenshot, and this was all about the heme synthesis and the porphyria. I would again like to request you all that please see the previous video before viewing this video, because इस video में मैंने सिर्फ ट्रिक्स बताई है, कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ डेटा दिया है, इनपुट दी है, और आपको मतलब सिर्फ लर्न करने के लिए निमोनिक प्रोवाइड किया, वो भी मैंने खुद नहीं बनाया. आई हैव टेकन इट फ्रॉम नेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल. तो समझने के लिए पिछली वीडियो जरूर देखें गाइस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अपने फ्रेंड्स को भी दो. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू.